Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. This video is very crucial and very important for you if you really want to crack IBPS Preliminary 2020 this time. Number of vacancies are very less. Only few people will be able to appear for main examination. And this has altered entire equation from people those are strong in quant and reasoning to people those are strong in English. Say exam is of 100 marks. 30 marks is English, 35 is quant, 35 is reasoning. If cutoff is low, so the people those are able to score high in quant and reasoning, they are easily able to cross the cutoff despite their English is weak. But if cutoff is high, say cutoff is above 80, even if they score 100% in quant and reasoning, they cannot qualify the cutoff if they score not less than 15 marks in English. And very few candidates are able to score in double digit in English. So what we should do? What should be our strategy? The strategy is use of a good mock test suggested by me. Subscribe this mock test. Link is available in description and comment column. After subscription, attempt one of the mock test that is for IBPS PO Prim. This will tell you where you stand. Unless you know where you are weak, this time it will be difficult for you to clear preliminary even if you have cleared number of times in past. Because right advice at right time is the motto of this channel, and that's why I am advising. Don't go by the history. You were used to clear Prim at a time when number of vacancies were high. So a large number of candidates were used to qualify for mains and then they struck up in the main. But this time the game decider is Prim itself. Lot many people may be plugged in Prim itself, and then there will be tough fight in main because all the candidates those who have qualified the Prim, they are of very high level because they have scored more than 80 in Prim and now they are competing. And if you want to score more than 80 in Prim, it is most important you focus the entire energy on your weak areas only. Don't spend your time on your strong areas. That is wastage of time. So how to identify weakness? You require a diagnostic test. And what is that diagnostic test in competition? A efficient mock test. And that's why I selected this mock test. Its quality is excellent. That is watched by thousands of my subscribers. Those have got this success. I am not telling that this is good because I am telling it. I am telling it is good because thousands of my subscribers vouch it. They tell time and again, sir, the quality of your mock test is excellent. And their comments are all available on the community of my YouTube channel. You can read those comments, those compliments. And that's why I am suggesting you a good remedy. Take this remedy right now, otherwise you will repent later on. So the first task is use this mock test, attempt one mock test, identify your weak area. Now you come to know you are weak in English. What is the remedy? Read grammar book from Wren and Martin 2 hours daily. If you are weak in English,
The remedy is read Wren and Martin grammar book 2 hours daily. It will gradually improve your English. Second, from Economic Times, pick 10 words, those are difficult, for improvement of your vocabulary. You can visit their app or you can visit their website economictimes.com, and from banking and financial section pick 10 words. And third is copy A and copy B method, that is available in my English language videos. See all the videos, you will understand what is the importance of copy A, copy B method. Then say you come to know you are weak in quant. What should be done? Note down the topics, go to Google, type the topic name, say profit and loss plus NCERT book. It will land you in a page or a PDF where the in-depth knowledge of profit and loss problems are given. Read it, spend time. Don't be in rush. Even if you spend 1 hour, 2 hours, 3 hours in reading, it is worthwhile. Because unless you are conceptually clear, you cannot score 100% or near perfection in quant. Because you require very high score in quant to have 80 plus marks in overall. Because there is a negative marking also. And you are bound to attempt some wrong questions also. That will take down your score. So you have to be very, very accurate in quant to be ahead of others. Then in reasoning, say you have identified a particular type of problems you are not able to solve. Go to the root cause of this. Type the name of those type of reasoning questions, good book in Google search. Go to a good book where they have explained how you can solve these type of problems. So take help of elementary textbooks. These elementary textbooks are there to help you to develop your personality. So you should focus for 80 plus marks. So tips are: subscribe the mock test, identify your weak areas, and depending upon your weakness, use the remedy which I have suggested. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस बार IBPS PO का प्रीम बिल्कुल अलग होगा. क्यों अलग होगा? क्योंकि अभी तक वैकेंसीज कम है. कम वैकेंसी मीन्स कम लोग शॉर्टलिस्ट होंगे. कम शॉर्टलिस्ट होंगे मीन्स कट ऑफ हाई होगा. हो सकता है कट ऑफ 80 से अधिक हो. अभी तक क्या था कि अगर कट ऑफ 60 है, 65 है, 67 है, तो उसमें जिसका रीजनिंग और क्वांट अच्छा है वो प्रीम पास कर जाएगा. क्योंकि 70 नंबर का आपका क्वांट एंड रीजनिंग है. सिंगल डिजिट में भी इंग्लिश में नंबर आ गए, आपकी नैया पार हो गई. पर यदि 80 प्लस कट ऑफ लाना है मुझे, तो मुझे इंग्लिश के अंदर भी 10 से अधिक नंबर चाहिए. क्योंकि इंग्लिश 30 नंबर का है. अगर मैं वहां 20 नंबर गवा रहा हूं तो मेरे किसी भी हालत में 80 नंबर नहीं हो सकते. क्योंकि अधिक से अधिक क्वांट और रीजनिंग में 70 नंबर ही आ सकते हैं. तो मुझे हर हालत में इंग्लिश में 14, 15, 16, 18 ये नंबर लाने हैं 30 में से. ये कैसे आएंगे? तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपनी कमियां ढूंढनी है. कई लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कहां पर कमजोर है. टाइम वेस्ट हो जाता है. टाइम बहुत कम है. अक्टूबर में एग्जाम है, अगस्त में हम चल रहे हैं. तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए जो मैंने आपको सजेस्ट किया. एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है जो आपकी कमियां आपके सामने लाके रख सकता है. लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में है. काफी लोग चर्चा करेंगे कि सर ये मॉक टेस्ट क्यों कह रहे हैं. ये मॉक टेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेहतरीन है. ये हजारों कैंडिडेट्स ने यूज किया है और उन्होंने तारीफ की है कि ये बहुत बेहतरीन है. और आपको देखने हैं उनके कमेंट्स. कम्युनिटी में जाइए, उनके कमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस के साथ वहां पे अवेलेबल है. अगर आप विश्वास करेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है.
इसको ले लीजिए, कोई बहुत बड़ी डील मैं आपको नहीं बता रहा। 599 रुपीज़ का एनुअल प्लान है, 50 रुपये महीना से भी कम की कीमत है। ये आप एक कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर देते हो खड़े होके। काफ़ी लोग बड़े समझदार होते हैं, वो मतलब एक कॉफ़ी पी लेंगे 200 रुपये की, पर जहाँ से 5 या 6 लाख की जॉब मिलनी है वहाँ पे 600 रुपये खर्चते हुए 50 बार 50 क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमारी विशेषता है। आप ये समझ लीजिए कि आप अनिल अग्रवाल जी पे विश्वास करके ये एक आज ट्रीट दे रहे हो किसी को, जहाँ 500 रुपये खर्च हो गए आपके, और फिर आप देखोगे आपको वो जॉब मिल गई जहाँ 5 से 6 लाख रुपए साल के आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने सही रास्ता पकड़ लिया। जब आप एक सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। जरूरी नहीं होता जीत जाएंगे आप, कोई भी जो व्यक्ति है आपकी संभावनाएं बढ़ा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि आप जीत ही जाएंगे। हाँ, यदि आप अपने आप से 70 नंबर लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो मेरे बताए रास्ते के ऊपर चल के आप 80 से अधिक नंबर ले लेंगे, ये जरूर होगा। पर 70 तो आपके अंदर अपनी कैपेबिलिटी चाहिए, 10-15 नंबर मेरे बताए रास्ते से आपको ऐड ऑन होंगे। और वो रास्ता क्या है? जब आपने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, अपनी कमियां ढूंढी, अब उनको हमने टारगेट बनाकर उनको दूर करना है। मान लो आपके इंग्लिश में सिंगल डिजिट में नंबर आए, काफी क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इसका मतलब यह है आपकी ग्रामर बहुत कमजोर है। कुछ लोग कहते हैं जी ग्रामर के क्वेश्चन बड़े कम आते हैं। आप ग्रामर पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। क्वेश्चन ग्रामर पे क्वेश्चन आने का नहीं है, क्वेश्चन ये है अगर भाषा में नंबर नहीं आ रहे, ये पक्का है आपकी ग्रामर कमजोर है। ग्रामर मजबूत करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको ग्रामर बुक बाय रेनन मार्टिन पढ़िए। 2 घंटे रोज लगा दीजिए, शुरू के 1 हफ्ता इन्वेस्ट करिए आप। इसके बाद आपको पता लगा क्वांट के अंदर कुछ विशेष क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया, मान लो मिक्सचर गलत हो गया, मान लो डायरेक्शंस गलत हो गई, स्ट्रीम के क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप क्या करते हो? दुनिया भर की चीजें तो कर रहे हो, मगर इससे संबंधित जो टेक्स्ट बुक है वो नहीं पढ़ रहे। ये कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक गूगल सर्च में टाइप करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एनसीईआरटी बुक। वो आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ पे लेके जाएगी जहां पर ये चर्चा हो रखी है। फिर इस टॉपिक को पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस को, इसके विषय को समझिए, और जैसे ही आपको यह विषय समझ आ गया, एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, आप कर पाएंगे। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग में आपने मॉक टेस्ट किया, एक विशेष तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, वो विशेष तरीका आपने कॉपी में नोट किया हुआ है। आप गूगल सर्च के अंदर वो टाइप डालिए किस टाइप की रीजनिंग आप नहीं कर पाए, साथ में डालिए गुड बुक। वो आपको एक अच्छी बुक पे लेके जाएगा जो आपको मेथड बता रहा है ऐसी चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, वहां से सीखिए। जैसे जैसे आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते चले जाएंगे जीवन के अंदर, आप 80+ पे पहुंचते चले जाएंगे। ये मान के चलिए इस बार कट ऑफ पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों के अंदर इतनी कम वैकेंसीज नहीं आई हैं। इसलिए पिछले किसी भी वर्ष का कट ऑफ मायने नहीं रखता है। आपने देखा होगा जब आरबीआई का एग्जाम आया था असिस्टेंट का, मैंने कहा था 90 से अधिक कट ऑफ होगा। कुछ लोगों ने नहीं माना उस बात को, मजाक भी उड़ाया, पर बाद में क्या हुआ, सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के सब जगह 90 से ऊपर कट ऑफ आया। क्यों आया? क्योंकि वैकेंसी ही 700+ थी। जब वैकेंसी कम होंगी तो कम लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, और हमेशा इतने लोग तो होते ही हैं 90+ वाले कि वो कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे। तो जैसे जैसे वैकेंसी श्रिंक हो जाती हैं और जैसे जैसे कम से कम कैंडिडेट सिलेक्शन में आते हैं, तो भाषा का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो लोग रीजनिंग और क्वांट में स्ट्रांग होते हैं वो 70 से अधिक नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि 70 ही नंबर हैं उसके।
अब अगर 85 नंबर लाने हैं तो 15 नंबर मुझे इंग्लिश में लाने ही पड़ेंगे, और मेरी इंग्लिश कमजोर है, 5, 6, 7 नंबर से ऊपर आते नहीं है। कट ऑफ तो पार हो जाता है पर नंबर 6, 7 ही आते हैं, तो मेरा इस बार प्रीलिम पास नहीं होगा। मुझे इंग्लिश पे टाइम डिवोट करना पड़ेगा। कई कैंडिडेट मेरे पास आते हैं कि सर ये वीडियो आपकी इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आ रही, हिंदी मीडियम में दे दो, और वो अफसर बनना चाहते हैं। अब आप देखो कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप तो प्रीलिम ही नहीं पास कर पा रहे हो अब, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है। इंग्लिश स्ट्रांग आपको करनी है, क्यों भाग रहे हो इंग्लिश से? इंग्लिश को मजबूत करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, उसको आजमाइए। पर इस पेपर के अंदर इस बार इंग्लिश बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, उसके ऊपर फोकस करिए। ये इसमें निहायत जरूरी बात मैंने आपको समझाई है। पहला है जो मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे रहा हूं, बिना सोचे विचारे मुझ पे विश्वास करते हुए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यही समझ लीजिए कि अनिल अग्रवाल जी के कहने से आज मैंने कोई ऐसी चीज खरीद ली जहां 500 और 600 रुपए खर्च दिए, और फिर देखिए क्या जादू होता है, फिर देखिए आपको क्या फायदा होता है। जिस तरह हजारों लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा जरूर होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हाँ आपने मॉक टेस्ट ले लिया और आपका एग्जाम पास हो गया, ये मत समझिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपके 70 नंबर आते और आप इस मॉक टेस्ट से अपनी कमियां ढूंढ पाते हैं और उन कमियों वाले एरिया पे मेरे बताए रास्ते पे चल पाते हैं, तो पूरी संभावना है कि आपके 80+ मार्क्स आ जाए। 80+ मार्क्स लाने के लिए इंग्लिश पे फोकस, अच्छे मॉक टेस्ट का इस्तेमाल और उन एरियाज का आइडेंटिफिकेशन करना जहां आप कमजोर हैं और उस पर टाइम डिवोट करना निहायत जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।